Hey everybody, it's Craig Bector here, and in this video I'm going to give you the best camera settings for portrait photography, shooting in natural light, and then we'll get into shooting with flash. Alright, let's get started with natural light. So if you're shooting in natural light, you have a lot of flexibility because you're not worried about your flash sync speed, and we'll get to that in a second. So I suggest a general rule is shooting at a shutter speed double the size of your lens. So let's say if you're shooting with a 70mm or an 85, or let's just make it simple, if you're shooting with a 100mm prime lens, then your shutter speed at a minimum should be 200. Although it'll be probably higher depending on your lighting situation. You can shoot all the way up to 8,000, whatever works. So I suggest looking at your in-camera meter and then taking a test shot, and then look at your histogram, make sure it's close to the right but not blowing out, and then also have a look at your highlight indicator warning, make sure that's on as well, and then just refer to that. And then if you need to make it a little brighter, you can. Now I don't use spot metering, it depends on your camera model what they call it, but I just do a general metering of the whole scene, and then I just look at it. And I think the best thing is to use your eyes and see what you think. Does it look too bright? Does it look too dark? One thing is to always have your LCD screen on the same setting. Set it for 3 or 4 or 5. Get used to how your image looks, because if it's on auto, it's going to vary depending on your lighting situation. It's going to be really hard to tell if you look at your LCD screen and you just gauge that if it's not always set the same. So set your LCD screen to about 4 or 5, whatever works for you. Keep it that way, and then refer to your histogram, and also refer to your highlight indicator warning. So if you're shooting natural light, as long as you're over a shutter speed of 200, you're usually pretty good. Now as far as your aperture, it really depends on your lens. If it's 2.8, general rule is 3 stops above that is roughly the sharpest point of the lens. So if you're going for sharpness and you're using a 2.8, then you're probably going to want to shoot around f8. So anywhere from f5.6 to f11 if you're shooting portraits. Now if you want that blurry background, then you're going to want to open it wide up. You might lose some sharpness, but you can use a tripod hopefully to compensate for that. Now I like to shoot at f1.4, and that's just me, so it's really depending on your style. Now let's get to flash photography. Now there's 2 different types of strobes out there. So with some strobes you have a capped sync speed. So what that means is if you shoot above that, you'll see a black line in your image. So for example, on a Canon camera with certain strobes, you can only shoot at a shutter speed of 200, nothing higher than that. And some Nikon cameras you can shoot at a shutter speed of 250. So be aware of that, what type of strobe you're shooting with. Now one thing you can do to shoot at a wider aperture is to use a neutral density filter. I'm going to put a link to a video below where I've shot with a neutral density filter, and normally I'll shoot with a 3 stop, so bringing the light down 3 stops. That will allow you to shoot at a more open aperture, say close to f1.4 or f2. So that's what you would use if you're shooting outdoors and you want a wider aperture and you know that your shutter sync speed is capped at 200 or 250. So use an ND filter. Like I said, there's a video below this one. You can check that out. You really can't see a visible difference if you use a high quality filter like a B+W filter. Now also I have strobes that shoot at high speed sync. Now the difference is I can shoot up to a shutter speed of 8,000 and I don't have to use an ND filter, which is just one less thing to think about. And again, I'm always thinking the same thing. If I'm shooting with a 100mm lens, I times it by 2, and I don't want to go below 200, and it's just the same principles apply. So it's really about the artistic look that you're looking for, and then really just making sure that you don't blow out the highlights so that you can cover everything when you're in RAW and in your post. Now another good idea is, I don't always do this, I use it for a reference. It's the color checker. I have one of these. I also have the video color checker. I'll shoot that and I'll look at the suggested white balance. But often, for my taste, I find it a little too warm. For example, if I'm shooting with my strobes, I set my white balance to manual to 5500, and then often I'll cool it down to maybe 52 or 53, although the color checker here might say that I should be at 6,000 or I should be at 7,000. So always having an accurate white balance really doesn't matter as much if you're not shooting for a catalog and fashion and they want their colors to be totally accurate. If you're just going for your own look and skin tones, I often adjust those by eye. So hopefully these tips are helpful. If you have any questions, if something I said wasn't clear, just post them in the comments section below. If you found these tips helpful, give me a thumbs up. Also, if you feel like you want to share this video, just look below. You can click on share and share it with other photographers. And if you're not already a subscriber and you're new here, my name is Craig Bector, and I come out with new videos every week. So if you're into photography, just click on subscribe and hit that bell notification, and you'll get email updates when I release my weekly videos. All right, thanks for watching this video. Give me a thumbs up, leave a comment below, and I'll see you in the next video.
हे गाइस, अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं Oppo A3s से कैसे आप अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। क्या क्या सेटिंग्स दिया है Oppo A3s में, वो सारे सेटिंग्स मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। एंड होपफुली आप अच्छे पिक्चर्स कैप्चर करेंगे इस वीडियो को देखने बाद। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिए। बहुत ही यूजफुल वीडियोस बनाए हूँ, आप मेरे चैनल पर ब्राउज करके देख सकते हैं। एंड लाइक और शेयर जरूर कीजिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो ये है Oppo A3s, जैसे कि आप देख रहे हैं। कैमरा यूजर इंटरफेस ऐसा होता है, आप जस्ट कैमरा आइकॉन को टैप करते हैं तो कैमरा ओपन होता है, तो यही यूजर इंटरफेस आपको मिलता है। तो यहाँ पर ढेर सारे ऐसे मोड्स है। देखिए, फोटो है, फोटो से अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो वीडियो, यहाँ से आप इसको स्वाइप अप ऐसे करेंगे तो वीडियो मोड जाएगा। एंड अगेन टाइम लैप्स है। फिर से अगर आप नीचे ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे तो पोर्ट्रेट है एंड पैनोरामा। तो सबसे पहले पैनोरामा। तो पैनोरामा जैसे कि आपको पता है 360 डिग्री वाला पिक्चर आपको एक ही पिक्चर में मिलता है। तो कैसे उसको कैप्चर करें, इस मोबाइल में हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकली ऐसे पकड़ने के लिए दिया है। तो यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट आप चूज कीजिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आप जस्ट ऐसे स्लोली धीरे से जो मार्क यहाँ पर दिखाई देता है वैसे आप कैप्चर करते आए। जस्ट ऐसे मूव करते आए तो अपने आप वो खींचता जाएगा पिक्चर्स को। तो सारा फ्रेम होने के बाद क्या होगा कि पिक्चर आपको क्लिक होगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे बस इतना ही चाहिए, इतना तक चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं। वाइड एंगल जैसा इमेज बना सकते हैं। तो इसके बाद जस्ट स्टॉप प्रेस करेंगे तो अभी देखिए वो वाला पिक्चर, जस्ट हमने जो पिक्चर लिया है, देखिए कितना वाइड एंगल वाला मिलता है। एंड ऑटोमेटिकली स्टिच कर लेता है और सिर्फ एक ही पिक्चर में आपको इतना बड़ा, इतना सारा कवर कर लेता है एरिया। तो ऐसे आप पैनोरामा को यूज कर सकते हैं पिक्चर्स लेने के लिए। तो ये था पैनोरामा मोड। एंड उसके बाद है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जैसा कि नाम है, सेल्फीज लेने के लिए हो या फिर किसी पर्सन का कैप्चर करने के लिए, बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए पोर्ट्रेट मोड को हमेशा यूज करें। बहुत ही अच्छे पिक्चर्स आते हैं। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनियन को यहाँ से टोटल फोकस हुआ है यहाँ पर, एंड बैकग्राउंड में फुल ब्लर कर दिया है। वहीं अगर मैं फोटो मोड पर कैप्चर करूं तो देखिए कितना बैकग्राउंड फोकस में है, अभी भी ब्लर नहीं होता है। एंड इवन देखिए, मैं एग्जांपल को आपको दिखाता हूं कि पोर्ट्रेट मोड पर कैसा आता है एंड नॉर्मल फोटो मोड। तो डिफरेंस आपको अभी पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है क्या नहीं। पोर्ट्रेट मोड पर बिल्कुल बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। तो उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ टाइमर लगा सकते हैं 3 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स। एंड ऐसे टैप टू क्लिक द पिक्चर भी है, तो वैसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। एंड बस उतना ही पोर्ट्रेट मोड पर। तो नेक्स्ट फोटो मोड है। फोटो मोड में यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है आपको रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए या फिर इमेज साइज कहिए। तो स्टैंडर्ड, स्क्वायर। तो इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्क पर जल्दी से जल्दी शेयर करने के लिए आपको बिल्कुल क्रॉप नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट 1:1 एस्पेक्ट रेशियो में लेंगे तो डायरेक्टली इंस्टेंटली आप यहाँ से ही इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं बिना क्रॉप किए। तो ये वाला अच्छा है फीचर। एंड इसके बाद फुल स्क्रीन, यानी बिल्कुल 18:9 एस्पेक्ट रेशियो ही कहिए विथ नॉच। तो ऐसे आप कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इमेज साइज बिल्कुल कम हो जाता है। तो उससे थोड़ा आपको क्लैरिटी इतना भी ज्यादा नहीं मिलेगा जितना कि स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन में लेते हैं। लेकिन फिर भी आपको मोबाइल में देखने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो फुल वॉलपेपर जैसा आपको लगेगा जो भी पिक्चर्स आप लेते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है HDR। जैसे कि आपको पता है, हाई डायनामिक रेंज, यानी जो भी डार्क शेड्स होता है एंड व्हाइट शेड्स जो भी होता है, तो शैडोज एंड हाइलाइट्स हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, तो उसको वो अच्छी तरह से इवनली लिट इमेजेस आपको देगा जब भी आप HDR में लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल स्टेडी हैंड्स रखना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लरी या शेकी फुटेज एंड इमेजेस जरूर मिलेंगे। तो इसीलिए आप बहुत ही बिल्कुल ऐसे स्टेडी पकड़ के आप मेरे चैनल पर ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं बताया हूँ कि कैसे आपको प्रो लेवल वाला फोटोज निकालना है, कंपोजिशन क्या है, ये सारा आप ब्राउज करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो ऐसे आप HDR पिक्चर्स को ले सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा पिक्चर्स भी जरूर मिलेगा। तो एंड उसके बाद है फ्लैश। तो यहाँ से आप मैनुअली फोर्सेबली ऑन कर सकते हैं, ऑटो है। एंड हमेशा अगर ऑन रखना चाहते हैं तो फिल लाइट, देखिए कितना अच्छा फिल करता है लाइट वहां पर। तो ऐसे भी आप फोर्सेबली ऑन करके फ्लैश को जरूर पिक्चर्स ले सकते हैं। इंडोर या फिर नाइट सिचुएशंस में बहुत ही अच्छा पिक्चर्स मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 1x दिखाई दे रहा है, तो टैप करके होल्ड कीजिए ऐसा एक बार
एंड उसके बाद आपको वाइप डाउन ऐसे करेंगे तो अप टू 4x जूम मिलता है, जो कि डिजिटल है। इसमें स्टेबलाइजेशन या फिर ऑप्टिकल जूम ऐसे कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल अच्छा पिक्चर्स आता है इवन एट 4x जूम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4x जूम करके मैंने लिया हूँ तो बिल्कुल शार्प इमेजेस आता है, बहुत बढ़िया इमेजेस ओप्पो ये 3s में। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इतने बजट फोन में भी वो क्वालिटी अच्छा दिया है पिक्चर्स का। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, तो इवन 2x जूम पर भी लेंगे तो बहुत ही अच्छा पिक्चर्स मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है विथ 2x जूम एंड ऐसे इतने शार्प इमेजेस जरूर मिलेंगे आपको। अपना क्रिएटिविटी जैसा रहता है उसको बहुत ही अच्छी तरह से यूज करके आप फोटोज को लीजिए, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा भी और इमेजेस भी मिलेंगे। उसके बाद ब्यूटी लेवल है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर एक आइकॉन देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल डिसेबल्ड है, हम इसको अगर 1 2 3 4 अप टू 6 लेवल्स ब्यूटी है तो बिल्कुल सॉफ्टर इमेजेस जरूर मिलेगा। तो स्किन के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इवन ऑन रेयर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों पर भी दिए है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए विथ ब्यूटी 6 तो मिनियन का फेस तो बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया है। तो ऐसे आप ब्यूटी मोड को, ब्यूटी लेवल को चेंज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं है इसमें सेटिंग्स बताने के लिए। एंड एक बार देखिए यहाँ पर जस्ट टैप टू फोकस जो है आपको पता ही है, अगर बैकग्राउंड में फोकस करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली मीटर होकर देखिए कितना ब्राइट हुआ अभी, क्योंकि वो डिसाइड किया कि बैकग्राउंड ज्यादा डार्क है, अभी ब्राइट बनाना है उसको। तो एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन कहते हैं, उसके थ्रू वो ब्राइटर इमेजेस लाता है। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, एक बार जस्ट टैप करेंगे तो यहाँ पर एक सनलाइट जैसा मार्क है, तो उसको लेके आप एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को ऐसे आप थोड़ा डिक्रीज या बढ़ा सकते हैं लाइट के लिए। तो अगर ज्यादा लाइट आपको लगता है तो थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा आता है। तो ऐसे आप एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन भी यूज कर सकते हैं। देखिए ब्राइट एंड डार्क, नेगेटिव स्टॉप प्लस स्टॉप, ज्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा अगर करके आप देखेंगे इमेजेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा पिक्चर्स मिलेंगे। तो ये था फोटो मोड पर। तो इतने सारे फीचर्स, इतने सारे ऑप्शंस है फोटो मोड पर। स्वाइप अप करेंगे तो वीडियो पर जाएंगे, तो वीडियो में यहाँ पर 1080p एंड 720p दो ऑप्शन है बिल्कुल, बस इतना ही, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। 1080p पर कैप्चर कर सकते हैं एंड 720p, स्लो मोशन इसमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एंड इवन आप वाइल रिकॉर्ड करते वक्त ब्यूटी लेवल को यूज कर सकते हैं। एंड अगर किसी का फेसेस है तो अच्छी तरह से स्किन आपको स्मूथनेस में मिलेगा। तो वैसे आप ब्यूटी लेवल को यूज कर सकते हैं वीडियो खींचते वक्त। एंड नेक्स्ट है टाइम लैप्स। तो टाइम लैप्स भी आप इससे ले सकते हैं, लेकिन सेटिंग्स रखने के लिए कुछ नहीं यहाँ पर। टाइम लैप्स बिल्कुल ऑटोमेटेड रहेगा। अगर कुछ सिटी का मूवमेंट्स रहता है आप कैप्चर करना चाहते हैं या फिर सनसेट का हो, वो बहुत ही अच्छी तरह से टाइम लैप्स में आप ले सकते हैं। जस्ट रिकॉर्ड पर टैप कीजिए, वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा, जब चाहिए आप पॉज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। एंड इस वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, जस्ट सेटिंग्स पर जाना है आपको एक बार। तो सेटिंग्स पर जाएंगे तो लास्ट में सिस्टम एप्स करके है, तो सिस्टम एप्स पर आपको मिलेगा कैमरा। तो यहाँ से आप वाटरमार्क को ऐड कर सकते हैं, ओप्पो का वाटरमार्क। एंड उसके अलावा फ्लिप सेल्फी है, अगर सेल्फीज ले रहे हैं एंड आपको उल्टा आ रहा है फ्लिप होके, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मिरर ऑन इफेक्ट होता है वो वही है फ्लिप सेल्फी। एंड लोकेशन टैग कर सकते हैं, जीपीएस टैग आप। एंड उसके अलावा शटर साउंड है, तो क्लिक करते ही आपको जो शटर साउंड मिलता है वो वाला है। एंड ग्रिड, तो अगर आप अच्छे कॉम्पोजिशन चाहते हैं तो जरूर ग्रिड को ऑन करके रखिए हमेशा, यानी कि आपको 3x3 यहाँ से ग्रिड मिलेगा। ये वाला जो लाइन देख रहे हैं आप, तो वही 3x3 ग्रिड है। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पर है या नहीं, एंड बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल जैसे कैप्चर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है वॉल्यूम बटन। अभी वॉल्यूम बटन क्या करना है, इसका फंक्शन कैमरा पर आप डिसाइड करके जूम करने के लिए या फिर क्लिक करने के लिए इमेजेस को, या फिर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप डिसाइड करके चेंज कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स है दोस्तों कैमरा में ओप्पो A3s का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूं अगले वीडियो में, और भी ढेर सारे वीडियोस बनाए हूं ओप्पो A3s के रिलेटेड, आप देख सकते हैं।